हेलो एवरीवन, दिस इज़ कस्तूरी एंड यू आर वाचिंग एसएसटी बाज। आज हम यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है ना, जर्मन, इटली एंड ब्रिटेन रिलेटेड। वो तो गया हिस्ट्री का पार्ट। अपने लाइफ में भी यूनिफिकेशन का एक्सपीरियंस हम करते हैं। वो कैसे? सपोज यू आर सिटिंग विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर और ऑल दोज सम गुड्स आर केप्ट टुगेदर। तो तुम अपना सामान लेने जा रहे हो, एक कौन सा तुम्हारा है वो चुनने जा रहे हो। तो कभी के बाद एक दो सामान लेके ब्रदर एंड सिस्टर के साथ तू मैं होता है, टग ऑफ वॉर होता है, इजंट? तो आखिर आफ्टर ऑल तुम अपना सामान एक साथ अपने पास रख लेते हो, यूनिफाई कर लेते हो। ये हुई ना बात। तो हिस्ट्री का यूनिफिकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब भी हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, फर्स्ट नेम विल कम प्रूशिया। क्योंकि प्रूशिया ने यहाँ पे लीडिंग रोल लिया है। इवन वी कैन से द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ liberal group of people, when they have taken that initiative for the unification, वो टाइम पे क्या है ना, monarch and army they actually tried to repress, वो दबा के रखना चाहते थे। and on that time junkers, जो क्या था ना, the big land owners in Prussia, so वो क्या था, they used to help to army as well as the monarch. But on that time, Otto von Bismarck, he was the chief minister in Prussia. He fought a lot, even with the help of Prussian army and bureaucracy. So उन्होंने fight किया। कौन सा? In 3 years, 7 wars they have fought against Denmark, France and Austria. तो ये तीनों जो country इनके against में युद्ध किया, and after all Prussia won the battle, and after all 1871 they have got that success, and here Prussia's king William I was considered as a the king of unified German. So now after unification, तो आफ्टर ऑल व्हाट वुड बी देयर? नेशनलाइज, सारे बैंक को नेशनलाइज करना पड़ेगा। सो बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, सो ऑल दिस सेक्शन, ऑल दिस की फैक्टर ऑफ द नेशन वाज वेयर मॉडर्नाइज, सारे अपने हिसाब से किया गया। नाउ नेक्स्ट इज देयर प्रूशियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस बिकम ए मॉडल फॉर द मॉडर्न जर्मनी। तो अभी प्रूशिया ने इतना ड्राइविंग फोर्स थे, तो वो तो मॉडल बनना ही है। कभी भी देखो तो अपने लाइफ में मॉडल जो भी कुछ फैशन ट्रेंड्स लेके आते हैं, डेफिनेटली यू पीपल लव टू फॉलो दैट। It may be clothing, it may be for hairstyle, anything, isn't like that only. So here Prussia, they have taken that leading role. So that's why whatever measures had been taken, whatever practices they have used, they were used to. So all these were followed by modern German. So this is all about unification of Germany. जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब बारी है इटली यूनिफिकेशन की। इटली यूनिफिकेशन जानने के लिए हमें पहले पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इटली जानना बहुत ज़रूरी है। जो क्या है, द होल इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 states. The northern part of Italy was controlled by Austrian Habsburg. The central part of Italy was controlled by Pope. And the southern part of the Italy was controlled by Spain Bourbon dynasty. Only Sardinia, Piedmont, the area was controlled by Italian princely house. That was the whole political condition of Italy on that time. Now these are the heroes. They fought against all these outside forces and they brought that unification for Italy. तो फर्स्ट जो सुपर हीरो का काम किया है वो है जिप्सी मज्जिनी। ऑलरेडी वी नो ही हैड मेड अ सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटाली। थ्रू दैट सीक्रेट सोसाइटी ही स्प्रेड ओवर
about his goal, about his strategies among common people. Now next is there Gypsy Garibaldi. Southern portion already we know that was captured by Spain. So Garibaldi took his army group and with the help of his local peasant, so he was able to make defeat Spain. Now we will go for the Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II actually defeated the northern portion, Austrian Habsburg. And after all, Cavour, the chief minister of Italy, he was not enacted as a revolutionary or democrat. तो फिर किया क्या उन्होंने? He had done his very smart work. He had made a friendly relationship with France. और उन दिनों में फ्रांस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट फोर्स माना जाता था. तो दैट्स वाई ही मेड ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद फ्रांस ताकि दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम. जैसे कि हमारे इंडिया में अकबर ने भी किया था, अलायंसेस डिफरेंट रूलर के साथ एक फ्रेंडशिप बांध लिया था ताकि ही कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम. Okay, so after unification of Italy, Victor Emmanuel II, he announced himself as a king of unified Italy. That is all about unification of Italy. अब हम जानेंगे अबाउट ब्रिटेन यूनिफिकेशन. ब्रिटेन की यूनिफिकेशन जानने से पहले हमें जानना होगा द पास्ट सिचुएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जो क्या है ना, आफ्टरवर्ड्स नेशन स्टेट बनने के बाद वो नाम क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. सो अर्लियर क्या था, इंग्लिश, आयरिश, वेल्स एंड स्कॉट, दिस वेयर द 4 आइलैंड्स. ओके, नाउ सबका अपना अपना कल्चर था, सबका अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था. दैट इज़ वेरी नॉर्मल. बट हियर इंग्लिश अपना कल्चर, अपना इम्पोर्टेंस, अपना पावर ग्रेजुअली इन्हांस करते गए और जैसे ही इंक्रीज होता गया, सो आयरिश, वेल्स एंड स्कॉट के ऊपर अपना डोमिनेंस जताना स्टार्ट कर दिया. जैसे क्या है ना, 1688 में तो ऑन दैट टाइम ब्रिटेन में किंग था, किंगशिप था, दैट मोनार्की सिस्टम. बट इंग्लिश ने क्या किया, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट को सीज किया. इवन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर का डोमिनेंस ज़्यादा कर दिया. तो अभी दिख रहा है इंग्लिश ग्रेजुअली दे आर शोइंग देयर पावर. नाउ 1707 में ये फर्स्ट क्या किया, स्कॉटलैंड को अटैक किया. स्कॉटलैंड का अपना एक कल्चर था, बट वो कल्चर में इंग्लिश अपना जो बोलते हैं ओनरशिप, जो बोलते प्रभुत्व, वो जताने लगे. एंड हियर जो कैथोलिक थे, कैथोलिक ग्रुप ऑफ पीपल, उनको घर से बेदखल कर दिया गया. तो पूरी तरह से 1707 बाय एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लिश ने स्कॉट को अपने हिस्से में ले लिया. अब बारी है आयरिश के. वेल्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं विदाउट एनी ट्रबल. नाउ आयरिश का भी थोड़ा सा ट्रिकी वे, थोड़ा सा ट्रिकी है. वो क्या है कि आयरिश में भी अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर था, बट यहाँ पे रिलीजियन दैट क्रिश्चियनिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2, दैट इज कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक जो थे वो ट्रेडिशनली ओल्ड रिजिड थे, एंड प्रोटेस्टेंट जो था वो क्या है ना, थोड़ा मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी. और मज़े की यही बात है, इंग्लिश हमेशा प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे और नंबर ऑफ कैथोलिक आर मोर ओवर देयर. तो इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया. तो फिर कैथोलिक क्या करेंगे, कैथोलिक रिवोल्ट किया अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश. बट इंग्लिश का तो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, टिक नहीं पाए. तो आफ्टर ऑल आयरिश को भी इंग्लिश ने अपने हिस्से में ले लिया. तो दैट्स वाई आफ्टर ऑल इंग्लिश डोमिनेंस द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में चारों, इंग्लिश, आयरिश, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, चारों एक नेशन स्टेट बन गया. और वो नेशन स्टेट में क्या ना, फ्लैग, नेशनल फ्लैग, यूनियन जैक
and then a national anthem, God Save Our Noble King, and that English language was followed. And that was all about Great Britain unification. Today in this session we have completed the unification of German, Italy as well as Britain. I hope you have understood very nicely. If you have any doubt and queries, feel free to ask me. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.